Hello, students. So, hope you all are fine and fit by God's grace. So, in the last class, we have completed nutrition in amoeba and paramecium, and now today we are going to start nutrition in human being, right? So, how human being take the food, digest the food, all these things we are going to study today. So before getting into the main topic, let me explain you first what is the meaning of digestion. So my dear students, digestion means the food what we eat is actually a bigger food particle, right? These bigger food particles cannot be absorbed by our body. So during the process of digestion, we are converting the bigger food particles into smaller food particles. So what can we say? Digestion is a process in which bigger food particles are converted into smaller food particles and simpler food particles so that our body can absorb it, right? And digestion is done with the help of an enzyme. Okay, enzymes are biocatalyst which helps in digesting the food particles. So for all digestion, enzymes are required, and enzymes are specific in nature, in the sense for carbohydrate you need a separate enzyme, for proteins, for fats you need a separate enzyme. A single enzyme cannot digest all types of food, we need different types of enzymes. ठीक है बच्चों, तो हम जो खाना खाते हैं उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स एंड बिगर फूड पार्टिकल्स and that need to convert it into simpler food particles, right? Now you see the carbohydrate, बच्चों carbohydrate का जो simpler form है वो है glucose. Okay, carbohydrate is complex and glucose is simpler one. Okay, now proteins का जो simpler version है वो है amino acid and peptones. So if we eat proteins, our body cannot absorb it because it is complex in nature. So that protein has to be converted into amino acids and peptones, and these are simpler in nature and these can be easily absorbed by our body. Now fats, fats are complex, so fats need to be converted into glycerol and fatty acid so that they can be absorbed by our body. And for vitamins and minerals, no digestion is required because these are directly absorbed by our body. Clear बच्चों? So students, अब देखते हैं nutrition in human being which starts from mouth. Okay? Mouth में क्या होता है बच्चों? The food is broken down into smaller pieces. आपको मालूम ही है, हम खाना खाते हैं, चबाते हैं. So चबाने के वक्त में the food is converted into smaller pieces with the help of teeth and mixed with saliva with the help of tongue. So these are basic things which we are doing every day. आपको मालूम है. So now salivary gland, these enzymes I told you, biocatalyst, they are secreted by glands. तो enzymes को हमारे शरीर में बनाने वाला जो चीज़ है बच्चों उसको बोलते हैं gland. ठीक है बच्चों? So salivary gland secretes saliva. एंड सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी एमाइलेस. तो ये है बच्चों एंजाइम. सलाइवरी एमाइलेस इज द एंजाइम विच डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर. कॉम्प्लेक्स शुगर इज a type of carbohydrate that is starch into simpler sugar. So my dear students, first digestion starts in mouth, okay, with the help of an enzyme called salivary amylase which digests complex sugar, that is starch, into simpler sugar. तो बच्चों सिंपल वर्ड में ऐसे बोलेंगे कि the sugar is converted into simpler sugar, that is glucose, with the help of salivary amylase. Okay, and salivary amylase is secreted by a gland called salivary gland, and there is no protein digestion and there is no fat digestion. ठीक है बच्चों? So this I am discussing about mouth. Is it clear? So now students, next part is pharynx. So in pharynx no digestion takes place. तो pharynx में बच्चों कोई भी digestion नहीं होता है.
pharynx is located here just after the mouth. Is it clear? And in pharynx there is no gland, so no digestion takes place. So next is esophagus. नेक्स्ट इज, तो बच्चों देखिए ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, इस ट्यूब को बोलते हैं ईसोफेगस. ओके बच्चों, एन ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फूड पाइप. ओके, एंड इन ईसोफेगस नो डाइजेशन टेक्स प्लेस. याद रखिए बच्चों, इट इज कॉल्ड फूड पाइप सिंस इट हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक. No digestion takes place. Next is stomach. Stomach houses numerous microscopic gland on its surface called gastric gland. तो बच्चों ये जो पोर्शन दिख रहा है ये स्टोमक, और स्टोमक के वॉल पे, ऑन द वॉल ऑफ द स्टोमक देर आर thousands and thousands of microscopic gland, okay, which are called gastric gland. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड बच्चों कोई एक ग्लैंड नहीं है, ये लाखों की संख्या में होते हैं जो स्टोमक के वॉल के ऊपर पे लगे होते हैं. बहुत सारा होता है. ठीक है बच्चों, अभी जैसे मान लीजिए ये स्टोमक का वॉल है, मान लीजिए. ठीक है बच्चों, तो इस वॉल के ऊपर में ऐसे करके लाखों ग्लैंड होंगे. एक दो नहीं होंगे बच्चों, लाखों ग्लैंड होंगे. एक ग्लैंड को बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड. ठीक है बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड. आपका जो सेलेवरी ग्लैंड है बच्चों वो एक सिंगल स्ट्रक्चर है, बड़ा सा रहेगा. ओके, बट हियर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लैक्स इन नंबर एंड दे आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक, ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक. समझ में आ गया बच्चों? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड एक नहीं होता है, लाखों की संख्या में होता है. करेक्ट है. नेक्स्ट देखिए, नो गैस्ट्रिक ग्लैंड दे secretes gastric juice and gastric juice contains HCl, पेप्सिन, म्यूकस. तो बच्चों गैस्ट्रिक जूस के अंदर में तीन चीज होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस. पेप्सिन क्या करता है बच्चों? पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू सिंपलर प्रोटीन्स. तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना. ठीक है बच्चों, नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, नो फैट डाइजेशन, ओनली प्रोटीन डाइजेशन. एंड प्रोटीन इनटू सिंपलर प्रोटीन यानी मैंने बताया था ग्लिसरॉल या तो नो एमिनो एसिड और पेप्टोन्स. HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम. बच्चों HCl तो मालूम है आपको, इट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम इन द स्टोमक सो दैट द पेप्सिन कैन एक्ट. तो बच्चों पेप्सिन को एक्ट करने के लिए, काम करने के लिए एसिडिक कंडीशन चाहिए, एंड दैट एसिडिक कंडीशन इज प्रोवाइडेड बाय HCl. सब बच्चों समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? तो स्टोमक का जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है एसिडिक. क्या होता है बच्चों? एसिडिक, ताकि आपका जो पेप्सिन है वो काम कर सके. एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होगा तो पेप्सिन काम नहीं करेगा. और पेप्सिन का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू सिंपलर प्रोटीन्स. एंड नेक्स्ट इज म्यूकस. म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एसिडिक एक्शन ऑफ HCl. अब बच्चों देखिए ये आपका स्टोमक है. स्टोमक में अगर HCl होगा, स्टोमक के अंदर अगर HCl सिक्रीट होगा, व्हाट इज HCl? HCl इज एसिड. ठीक है बच्चों, एसिड की वजह से डोंट यू फील द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक मे गेट डैमेज्ड. आपको मालूम है एसिड इज डेंजरस. सो दिस एसिड मे बर्न द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक. सो टू प्रोटेक्ट द स्टोमक फ्रॉम द एसिडिक एक्शन ऑफ HCl देयर इज ए कोटिंग ऑफ म्यूकस. तो बच्चों स्टोमक के ऊपर में एक कोटिंग होता है और वो कोटिंग स्टोमक को HCl से बचाता है. तो ये कोटिंग को बोलते हैं म्यूकस. ठीक है बच्चों, तो म्यूकस का मेन काम क्या है? इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एसिडिक एक्शन ऑफ HCl. जब HCl हानिकारक है तो पेट में HCl क्यों सिक्रीट होता है बच्चों? इसीलिए बिकॉज HCl क्रिएट्स एसिडिक मीडियम. HCl क्या बनाते हैं बच्चों?
acidic medium, and this acidic medium is required for the action of pepsin. अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो बच्चों ये पेप्सिन काम नहीं करेगा. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट note, the exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscles which release the food in small amount into the small intestine. तो बच्चों from the stomach, this is stomach, and this from here the small intestine starts. So food is released into the small intestine slowly by a valve called sphincter muscles. So sphincter muscles यहाँ होते हैं बच्चों जो खाने को धीरे धीरे इंटेस्टाइन के अंदर में अलाउ करते हैं जाने को. क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? नो नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ. तो बच्चों देखिए आपका जो स्टोमक है तो स्टोमक में केवल प्रोटीन ही डाइजेस्ट हुआ है, ना फैट हुआ है और ना कार्बोहाइड्रेट हुआ है. इज इट क्लियर बच्चों? तो यानी स्टोमक में डाइजेस्ट होता है केवल प्रोटीन्स. याद रखिए बच्चों, माउथ में डाइजेस्ट होता है केवल कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गेट्स इनटू द इंटेस्टाइन. तो इंटेस्टाइन की जो यू दिख रहा है बच्चों इसको बोलते हैं डिओडेनम, एंड इनसाइड द डिओडेनम two glands secretes their enzymes. This is called pancreas and this bigger organ is called liver. तो बच्चों liver secrete करता है bile into the duodenum. This pancreas secretes pancreatic juice into the duodenum which is in small intestine. इसके अलावा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना भी ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड. तो यानी कितने ग्लैंड हो गए सब मिला के? दिस पैनक्रियास सेक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस इनटू द डिओडेनम व्हिच इज स्मॉल इंटेस्टाइन. लीवर सेक्रीट्स बाइल इनटू द डिओडेनम व्हिच इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो हैज इट्स ओन ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड. अब नेक्स्ट बच्चों देखते हैं लिवर. सो लिवर देखिए क्या करता है. लिवर सेक्रीट्स बाइल. Okay, bile, and it performs two functions as given below. Bile breaks larger fat droplets into smaller fat droplets. तो bile क्या करता है बच्चों? देखिए तो ये है फैट ड्रॉपलेट्स जो थोड़े बड़े बड़े हैं. तो ये बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को तोड़ के छोटा छोटा कर देता है बच्चों. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, एंड दिस इमल्सिफिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ bile, and this bile is secreted by liver. ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रोसेस को डाइजेशन नहीं बोलोगे. यहाँ पे क्या है, जो बड़ा बड़ा फैट ड्रॉपलेट्स है वो टूट के छोटा छोटा फैट ड्रॉपलेट्स बन जाता है. तो ये भी बच्चों फैट ही है और ये भी फैट ही है. बस जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में बदल दिया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन. इसके बाद बच्चों फैट का होता है डाइजेशन. ठीक है बच्चों, इसके बाद होता है फैट का डाइजेशन. तो मतलब पहले हम करेंगे बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ बाइल, एंड आफ्टर दैट वी डू द डाइजेशन ऑफ फैट इनटू ग्लिसरॉल. मैंने बताया था बच्चों फैट का जो छोटा वर्जन होता है वो है ग्लिसरॉल, नहीं तो आप बोलेंगे फैटी एसिड. इज इट क्लियर बच्चों? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर बच्चों? लिवर सेक्रीट्स बाइल, ओके, एंड बाइल कन्वर्ट्स द लार्जर फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स व्हिच फैसिलिटेट्स द डाइजेशन ऑफ फैट. दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन. उसके बाद बच्चों बाइल सॉल्ट ऑल्सो चेंजेस द एसिडिक नेचर ऑफ फूड टू एल्कलाइन नेचर. You know that in the stomach the nature of food was acidic due to HCl. So now in the intestine the nature of food should be alkaline so that the other enzymes can act. So acidic nature को alkaline nature में change करता है कौन बच्चों? Bile. ठीक है, तो बताइए बाइल का दो फंक्शन क्या है. The first function of bile is to convert larger fat droplets into smaller fat droplets so that the digestion of fat can take place. ठीक है बच्चों, and this process is known as emulsification, and bile salt also changes the acidic nature of food to
alkaline nature so that pancreatic enzyme can act. समझ में आया क्या बच्चों? नेक्स्ट है pancreas. Now pancreas it secretes pancreatic juice which contains trypsin and lipase बच्चों. ठीक है बच्चों? And this trypsin digest proteins. Trypsin क्या करता है बच्चों? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. एंड लीपेस डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट. वो जो फैट को हम लोग ने टुकड़ा करके रखे थे, छोटे छोटे टुकड़े, उसको डाइजेस्ट करता है. ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो ये तो पैनक्रियास. तो वंस अगेन इट सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक juice which contains trypsin and lipase. Trypsin digest protein and lipase digest emulsified fat. So this is pancreas. Next I told you intestinal gland. तो बच्चों इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरह छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं. ठीक है बच्चों? अब जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया इंटेस्टाइन. ठीक है बच्चों? क्या बना दिया? इंटेस्टाइन. अब इंटेस्टाइन के बच्चों पैनक्रियास सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है बच्चों? पैनक्रियास सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स ट्रिप्सिन एंड लिपेस. ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लिपेस डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट. नेक्स्ट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड. ठीक है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, ये फिगर है. सो दिस इज डिओडेनम. डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है बच्चों? उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. करेक्ट? नाउ इन दिस डिओडेनम लिवर सेक्रेट्स बाइल. आई एक्सप्लेन्ड यू. Pancreas secretes pancreatic juice, and this dot-like structure which you see is called intestinal glands. Okay, just like gastric gland, intestinal glands are microscopic glands located on the surface of the duodenum and other part of the small intestine. ठीक है बच्चों? So this intestinal gland, secretes intestinal juice. So what do they secrete? This secretes intestinal juice. So intestinal juice भी बच्चों एक तरह का enzymes है. It is a mixture of different types of enzymes. Okay? Now this intestinal juice finally converts the leftover proteins to amino acids and leftover carbohydrates into glucose and fats into fatty acids and glycerols. यानी बच्चों जो भी चीज बचा है लास्ट में जाके, जो फैट्स बचा है, जो कार्बोहाइड्रेट बचा है, जो प्रोटीन्स बचा है, उसको ये इंटेस्टाइनल जूस सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, करेक्ट, कि दिस इंटेस्टाइनल जूस इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी जूसेस, मेनी एंजाइम्स. सो दिस एंजाइम्स कन्वर्ट्स द लेफ्ट ओवर प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acids. Okay my dear students, and now it's the time for absorption because हमने डाइजेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है. ठीक है? तो पहला डाइजेशन कहाँ हुआ बताइए? Come on, tell me with the help of the figure. The first digestion we have done in mouth, and that is the carbohydrate digestion with the help of salivary amylase secreted by saliva. Second digestion we have done in stomach with the help of pepsin, okay, which digest only proteins. And third digestion site is the duodenum and other part of the intestine, small intestine, where the pancreas helps in digestion, liver helps in digestion, and there are intestinal glands which helps in digestion. तो बच्चों यहाँ तक आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. दिस इज असेंडिंग, दिस इज ट्रांसवर्स, दिस इज डिसेंडिंग. ओके, सो इन लार्ज इंटेस्टाइन नो डाइजेशन टेक्स प्लेस. ओके, इन लार्ज इंटेस्टाइन ओनली द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. ठीक है बच्चों? अब एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे. अब ध्यान से सुनिए. नाउ the digested food is absorbed by a specialized structure named villi. Villi are finger-like projection present on the inner lining of small intestine, which increases the surface area for effective absorption.
The villi are richly supplied with blood vessels to absorb the digested food and sends it to various tissues of the body. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, इंटेस्टाइन के अंदर में बच्चों इस जैसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं विलाई. ठीक है बच्चों, तो विलाई में छोटे, अब मैंने विलाई को बड़ा करके दिखाया, देखिए, तो विलाई में छोटे छोटे, सो बच्चों, तो ये है विलाई का एनलार्ज्ड इमेज. ठीक है बच्चों, सो विलाई हैज लॉट ऑफ पोर्स थ्रू विच द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स. तो यहाँ से बच्चों डाइजेस्टेड फूड जो है अंदर घुसते हैं. एंड फ्रॉम हियर दिस इज ब्लड कैपिलरी. इसको बोलते हैं बच्चों ब्लड कैपिलरी. ब्लड कैपिलरी मतलब बच्चों दीज आर स्मॉल ट्यूब थ्रू विच ब्लड फ्लोज एंड फ्रॉम हियर द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू द ब्लड कैपिलरीज. नाउ यू सी, एंड द ब्लड कैपिलरीज टेक्स दिस डाइजेस्टेड फूड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ये लेके बच्चों इसको बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा. समझ में आ गया बच्चों? तो व्हाट इज विलाई? विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द inner wall of the intestine through which digested foods are absorbed, and inside the villi you have blood capillaries which absorbs this digested food. तो digested food इसके अंदर चला जाता है बच्चों, और blood capillaries ये digested food को लेके सारे शरीर में चला जाता है. समझ में आ गया बच्चों? So this is how the intestine is designed, and because of these villi the surface area of the intestine increases. अब देखिए, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए बच्चों इट्स ओनली 2 मीटर स्क्वायर, सपोज, जस्ट इमेजिन. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे विलाई बना दिया, डोंट यू फील दिस, बिकॉज ऑफ दिस विलाई दिस मच सरफेस एरिया गेट्स इंक्रीज्ड. तो पहले बच्चों सरफेस एरिया इतना ही था, ये जो मैं बना रहा हूँ ध्यान से देखिए, पहले सरफेस एरिया इतना ही था, है ना, ये जो ब्लैक पोर्शन मैंने बनाया, ब्लैक स्ट्रिप. नाउ बिकॉज ऑफ द विलाई सरफेस एरिया देखिए इतना एक्स्ट्रा मिल गया है, एंड व्हेन द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द एब्जॉर्प्शन एरिया आल्सो इंक्रीजेस. तो इतने एरिया से एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एम आई राइट? एंड व्हेन द एब्जॉर्प्शन इज मोर इट इज गुड फॉर आवर बॉडी सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट इफेक्टिवली. और इसके अंदर में होता है बच्चों, ये जो मैंने बनाया रेड कलर से, ये है ब्लड कैपिलरी. ठीक है बच्चों, सो जो डाइजेस्टेड फूड विलाई एब्जॉर्ब करता है इट गेट्स इनटू दिस ब्लड कैपिलरी, एंड थ्रू द ब्लड कैपिलरी इट रीचेस द बॉडी पार्ट्स. ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट. देखिए यहाँ भी आप फिगर देख सकते हो. तो ये जो फिगर दिख रहा है बच्चों, ये है विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये जो रेड कलर का दिख रहा है बच्चों, ये सब है ब्लड कैपिलरीज जो ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके सारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है बच्चों, और ये तो आपको दिख रहा है अंदर में जो ट्यूब दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस पोर्शन इज रेक्टम, and this is anus through which the undigested food comes out. ठीक है बच्चों, and in the large intestine, ध्यान से सुनिए बच्चों, in the large intestine no digestion takes place, only absorption of water takes place. याद रखिए बच्चों, क्या होता है? absorption of water takes place, and finally the undigested food is stored here at rectum, and from here the undigested food is ejected out through anus. तो बच्चों इस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाया गया है. ठीक है, देख लीजिए, विलाई आर ओनली 1 cell thick. Villi increases surface area considerably, thus increasing the absorption of digested food. Blood vessels present in them are meant to carry absorbed food to different part of the body. Next is large intestine. The undigested food is passed onto large intestine where more villi absorb water from the undigested food. The undigested food is stored in rectum till it is removed away from the body via anus. ठीक है बच्चों,
by the process of digestion. The removal of undigested food is regulated by anal splinter. तो बच्चों एनस में भी दो वेल्व जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एनल स्प्लिंटर. क्या बोलते हैं बच्चों? एनल स्प्लिंटर. ये देखिए इसको बोलते हैं एनल स्प्लिंटर. यहाँ पे होता है एनल स्प्लिंटर. दिस इज रेक्टम, दिस इज रेक्टम. ठीक है बच्चों. अब ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट में दिया है टेबल में क्या क्या होता है. इन माउथ यू हैव, this is gland name salivary gland. It secretes saliva. It has enzyme salivary amylase. The food is digested starch into maltose. तो बच्चों या तो ये माल्टोस होगा या तो ये ग्लूकोज होगा. ठीक है बच्चों. इसलिए हम बोलते हैं कि हम लोग अच्छा से च्यू करके खाना चाहिए, चबाना चाहिए. बिकॉज when we chew the food properly, the digestion of starch takes place in a efficient manner. Okay. Now next is stomach. Stomach, the gland name is gastric. The secretion is gastric juice. It contains pepsin. लिपेज भी लिखा है बच्चों, लेकिन मैंने आपको और दो चीज पढ़ाया था, HCl और म्यूकस. ठीक है बच्चों. बट दे आर नॉट एंजाइम्स. द एंजाइम इज ओनली पेप्सिन. HCl helps the pepsin to act and mucus protect the stomach. एंजाइम्स बोलेंगे तो पेप्सिन है और लिपेज भी है बच्चों. नाउ प्रोटीन, अब लिपेज मैंने बताया नहीं था आपको. लिपेज इज अगेन एन एंजाइम विच डाइजेस्ट लिपिड्स. लिपिड्स इज अगेन ए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन आवर फूड. सो दैट लिपिड्स इज लाइक फैट्स. आप लिपिड्स को बच्चों फैट जैसा मान लीजिए जिसको डाइजेस्ट करता है लिपेज. ठीक है बच्चों. तो प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इनटू पेप्टोन्स एंड लिपिड्स आर डाइजेस्टेड इनटू ग्लिसराइड्स. ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए डिओडेनम में. जो यू शेप मैंने बताया था, देखिए ये जो यू शेप है, ये जो यू शेप है इसको बोलते हैं डिओडेनम. क्या बोलते हैं बच्चों? डिओडेनम. एंड डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ नेक्स्ट इज लिवर. सो लिवर secretes what? I told you liver secretes bile. Okay, bile doesn't contain any enzyme. It simply converts the larger fat droplets into smaller fat droplets. Emulsification of fat takes place. नेक्स्ट इज पैनक्रियाटिक जूस. बच्चों पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है एमाइलेस, ट्रिप्सिन, लिपेज. एमाइलेस स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है. माल्टोस इज अगेन सिंपलर शुगर. प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. दे आर सिंपलर प्रोटीन्स. फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है. ठीक है बच्चों. और ये सारा सिंपलर फूड हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है. नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल जूस. द नेम इज सक्कस एंटीरकस. 3 तरह के एंजाइम्स है उसके अंदर बच्चों. एरिप्सिन, एंजाइम्स फॉर शुगर डाइजेशन, एंड लिपेज. ओके. पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में चेंज कर दिया जाता है बच्चों. दिस पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स आर द सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन अगेन, एंड शुगर इनटू ग्लूकोज एंड ट्राइग्लिसराइड इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स. तो बच्चों जो भी बच्चा कुचा डाइजेशन है एवरीथिंग टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो बच्चों ये टेबल भी बना लीजिएगा, ये फिगर बढ़िया से बना लीजिएगा और ये सारा नोट्स आप लिख लीजिएगा. एंड दिस इज नोट्स इज विथ यू. ओके बच्चों, नोट्स आपके पास में है. फिर भी मैं आपको एक PDF कॉपी सेंड कर दूंगा. आप वो देख के बढ़िया से लिख के मुझे सेंड कर दीजिए. जो भी डाउट है मुझे कॉल करिए बच्चों, मैं क्लियर कर दूंगा. बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए. ठीक है बच्चों. तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, ह्यूमन डाइजेशन एक लंबा टॉपिक है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.